एक संयम करेगा ठीक है। और दूसरा Our guest for the day is joining in sometime. Kindly bear with us. Hi Pramod, RJ Gary here. Sir, I request you to please turn on your camera. Thank Yeah. you, sir. You're welcome. हेलो गैरी सर। हाय, कैसे हो? मैं ठीक एकदम। मैं लेट तो नहीं हो गया? नहीं सर, नहीं आप लेट नहीं है, बिल्कुल यू ऑन टाइम। नहीं, इतना तो चलता है, 1-2 मिनट, इंडिया में है ना हम लोग। ठीक है वैष्णवी, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। Yes, sir. The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world.
Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. Nice. Great things happen when the greatest minds gather. I, Vaishnavi, hereby pleased to offer you a warm welcome at Mega Virtual Media Fest Vritika 2020's Anchor Hunt competition. Delhi Metropolitan Education is A-grade premier educational institute which is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University and approved by Bar Council of India. It is also recognized as a college which focuses on the growth of its students and faculty through both academic and co-curricular activities. Vritika 2020 is being organized by DME Media School. One of the top media schools in the country, DME Media School has organized various successful events like ICANN, SIFI in collaboration with Deakin University, Melbourne, Australia. Additionally, BJ Varghese series is organized every month with eminent media personalities and experts delivering special lectures on issues related to media and other subjects of contemporary value. Vritika 2020, the Mega Virtual Media Fest of DME Media School is a 3-day mega event that provides a platform for inter-school collaborations and competitions for college students. This event is being conducted to further the cause of media, and our hashtag is Media for Cause. Our partner for this Media Fest is Lal Bahadur Shastri Institute of Management, Dwarka. Lal Bahadur Shastri Institute of Management was established in 1995 to perpetuate the memory of India's second Prime Minister, Bharat Ratna, Shri Lal Bahadur Shastri. Since then, it has emerged as one of the prominent business schools in the country. It is a leading institution with a distinct philosophy that inculcates deep-rooted Indian value system with young, budding minds. Now, before we proceed further, let's have a look at the highlights of Vritika 2019 and preparations of Vritika 2020. Media Fest Vritika 2019. journalist, a leader and an independence movement activist. He was an important figure in the non-cooperation movement and freedom movement of India. He was the founder editor of the Hindi newspaper Pratap. He was a fighter against oppression and injustice, whether practiced by bureaucrats, zamindars, capitalists, or higher caste. He fought all his life against oppression, against inhumanity. He is called Ganesh Shankar Vidyarthi.
presents Ganesh Shankar Vidyarthi Award for Value-Based Journalism. We are delighted to see the participation of students from different institutions. I am feeling honored to welcome the chief guest of the event, RJ Gary. RJ Gary has done bachelor's and master's in journalism and mass communication. He has also worked with ABP News Channel and All India Radio. After that, he started his own show by the name of Happy Evening in Punjab on 94.3 My FM. Sir has done a lot of shows with known singers and actors of Bollywood industry like Amy Virk, Mankirat Aulak, Sherry Man, etc. We feel honored to have you here with us today, and your presence is going to inspire and guide us. I will request RJ Gary to please kindly say a few words. First of all, thank you so much. और जितने भी मेरे को देख पा रहे हैं अभी, मुझे नहीं पता कितने जने हैं, तो जितने भी हैं, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया. इट्स बिग प्लेटफॉर्म कि आप कहीं से उठ के कहीं तक जाते हो. तो सबसे पहले थैंक यू सो मच दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन जिन्होंने मुझे इनवाइट किया. और पिछले 2-3 दिनों से आई गेस प्रमोद मेरे साथ इन टच में थे, तो काफी अच्छा लग रहा है. वर्चुअल इवेंट है, तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि जब सब कुछ सही हो जाएगा आफ्टर कोविड-19 और ये जो जिस महामारी से हम लोग निकल रहे हैं, उसके बाद मुझे आने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली अगर आप बुलाते हैं तो डेफिनेटली मैं आऊंगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो भी पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, गुड लक. और जो भी फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या जो पोजीशन नहीं गेन नहीं कर पाएंगे, प्लीज ऐसा मत समझना कि आप हार गए हैं. इट्स बिगिनिंग. तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आपको, तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आई गेस वैष्णवी. Yes, sir. Thank you so for your kind words. Now, let's move towards our event and begin it. The rules and regulations of anchor hunt competitions are: a situation, event, or topic will be given on the spot. The participant will be given 2 minutes to think for each topic. Each contestant will read their script for 90 seconds. English and Hindi both languages are allowed. Every participant must turn on their camera while reading their script. So wish you all the very best. And our first participant is Himanshu Dhariwal from Gautam Buddha University. Himanshu Dhariwal, please turn on your camera. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आए प्लीज एक बार अपना नाम खुद बता दें, ताकि मेरे को क्लैरिटी हो जाए नाम की. I request Himanshu Dhariwal, if you're in the meeting, then please turn on your camera. I guess there must be some technical issue, and that's the reason why he has not joined. So we can move on to the Himanshu. Yes, sir. So Himanshu and Nakshatra are facing some glitch. Please move forward, Vaishnavi. Okay. Our next participant is Nakshatra Sachdeva from Technia Institute of Advanced Studies. नाम दोबारा बताइएगा प्लीज. Nakshatra Sachdeva. Okay. Nakshatra Sachdeva, if you're in the event, please turn on your camera.
He's facing issue. Okay, all right. So we are moving to the next participant. Our next participant is Vaishnavi from PGDAV. Hello, my name is Vaishnavi. Okay. Hi, Vaishnavi. Hi, sir. So your topic is use of NGOs for business purpose. व्यवसाय के लिए गैर सरकारी संगठन का उपयोग. Is your topic clear now? Or shall I repeat? Yeah, use of NGOs for business purposes. Yeah. Your 2 minutes start now. Okay. Vaishnavi, your time is up. Okay. So could I start? Yeah, you can start now. Yeah. 90 seconds starts now. Okay. तो सर्वप्रथम जब हम एनजीओस की बात करते हैं तो एनजीओ का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिससे सरकार से कोई मदद नहीं मिलती पर वो लोगों के लिए कुछ करना चाहती है. तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि एनजीओ का पैसों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए. जरूर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं. पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर एनजीओस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ती है तो ना सिर्फ एनजीओस की रीच बढ़ती है बल्कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटी वर्क करना चाहती है, सोशल वर्क करना चाहती है, ना सिर्फ पेपर पर बल्कि जेन्युइनली लोगों के लिए, उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उन्हें भी एक रीच मिलती है क्योंकि लोगों का भरोसा एनजीओस में होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा. तो इस तरह से लोगों का भला भी होता है और एनजीओस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके कुछ अच्छा भी कर सकती हैं. इसके अलावा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस जैसे हेल्पेज इंडिया, स्माइल फाउंडेशन, ऐसे कई सारे एनजीओस से मैं अपने स्कूल में जुड़ी थी. और एक ऐसा वाकया हुआ था कि जब मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी तो मैंने इन कंपनीज को अप्रोच किया था पर कहीं ना कहीं एक रिलक्टेंस थी इनमें कि एनजीओस होकर हम ऑर्गेनाइजेशंस हम मनी रिलेटेड काम नहीं करते हैं. पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की रीच बढ़ाने के लिए, लोगों के लिए बेटरमेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना आउटलुक बढ़ाना पड़ता है. तो that's it. Vaishnavi, your time is up. So that was a very great performance. Our next participant is Zeenat Jahan from Chaudhry Charan Singh University. Zeenat, okay.
Your topic is the trend of organics over non-organic products. जैविक उत्पादों का बढ़ता प्रचलन. Your time starts now. Please repeat once more. Sure. The trend of organics over non-organic products. जैविक उत्पादों का बढ़ता प्रचलन. जीनत अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए आप. I have opened my camera. Open is I'm unable to watch you. Just let me check. मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दे पा रहे फिर? but my camera is on, sir. Wait. Is that visible now? Wait. नहीं, अभी भी नहीं. Sir, she has turned on the camera. I guess मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा. Yes. एक सेकंड. Okay, you may start. It's okay. Hello, Gary sir. I think there are two participants who are not able to join because of the technical reasons. They're not able to join. We've already given their names. Yeah. Just check once more if they are here. So in case we do not have those participants here, then in that case, we'll just move ahead and we can get to hear something from you. We can get to hear, and the students can probably learn something, probably that will give Yeah. us more No time. So you can talk more and we can, listen to you and learn something. Welcome. No issues. It's like a blessing in disguise, maybe. Yeah. No Thank issues. you. Zinat, your time is up now. You can start reading your script. Am I audible? Yeah. Yes. बढ़ रहा है प्रदूषण, बढ़ रही है आग भी. बढ़ रहा है प्रदूषण, बढ़ रही है आग भी. जाग जाए अब इंसान, यही है समय की मांग भी. जिस तरह से हमारे प्रदूषण के कारण, हमारी फैक्ट्रियों के कारण, व्यवसाय के कारण जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से समय की मांग बढ़ रही है जैविक सामानों के इस्तेमाल की. तो आज जिस तरह से ये चलन चला है जैविक उत्पादों के इस्तेमाल का, चाहे वो हो सुंदरता के लिए, जहाँ पे कई बार ये जो हमारा ट्रेंड चल जाता है और कि हम लोग क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उसी की तरह अब हम लोग पीछे जा रहे हैं. धीरे धीरे जैविक सामानों को इस्तेमाल कर रहे हैं. जिस तरह से हल्दी हो गया, बेसन हो गया, उसी तरह अगर हम दूसरे जाए किसानों के खेत में, वहां पर भी समय की मांग कह रही है कि अब हम और केमिकल से भरे हुए फर्टिलाइजर हमारी जमीन नहीं मांग रही है. हमें अब चाहिए साधा और सच्चा
घर में बना हुआ, खेतों में बनाए गए गोबर का खाद, जिससे कि ना सिर्फ हमारी जमीन उपजाऊ होगी, उसके साथ हमारी सेहत भी बढ़ेगी। तो यही है समय की मांग, और इसी के हिसाब से चलेंगे तभी बढ़ेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद। That was such a great, you have really good confidence. While we move forward, I have something important to share with you all. It gives me immense pleasure to announce that DME Media School will be organizing the second edition of Cineast International Film Festival of India, CIFI 2020, from 16th to 19th December. The theme for the mega event is Cinema and the Impact of COVID-19. The pandemic has been a great disruptor and has impacted the production, distribution, and consumption aspects of filmmaking. The impact is such that we will be organizing the event in hybrid mode, but with double the enthusiasm. Let's have a glimpse of CIFI 2020 launch video. Welcome to CIFI 2020. This is the second edition of this International Film Festival, that is Cineasta International Film Festival. In the past, it's been a wonderful event. And we at Deakin University are pleased to partner with Delhi Metropolitan Education, DME, the institute that is spearheading this exciting film festival. Last year in April, we organized this, and this time we are organizing it in a completely different era, that is the impact of the COVID-19. I'm sure that this year as well, despite the very obvious problems surrounding the COVID pandemic. That is how we have decided the theme of this year festival as cinema and the impact of COVID-19. It's going to be a very exciting festival this year because of the circumstances of the pandemic. We're moving some of it online, and that's created all sorts of new possibilities. Our plan is to showcase films from Australia and organize specialist panels on films and filmmaking, and help create a network of film professionals and students. And this collaboration will also be this time something new, wherein the teachers and the students will also be collaborating. So we will be getting a lot of films of the student filmmakers from Australia. It's an absolute pleasure to be involved with the Cineast International Film Festival of India. I am so looking forward to seeing what this year's program holds. There will be many panel discussions wherein the experts from both the countries will participate, and we call upon everybody to come and join by submitting their films in the independent filmmaker category, in the student filmmaker category, and be part of this CIFI 2020. And I can tell you it's going to be a great event with persons, personalities, films, documentaries,
from across the length and breadth of the globe. We'll be able to hold a very successful event. It's been done in a hybrid mode this time and has a wonderful theme surrounding cinema and COVID itself. We're going to be able to be much more involved from here in Melbourne in the festival, and that's going to be really exciting. In this festival of cinema, there will be lots of learning, to masterclass, curated session, workshops, and lots of fun. Just wanted to say I'm really looking forward to the Cineast International Film Festival of India, and can't wait to see the films and be a part of it. We are looking forward to be a part of SIFI 2020. So I look forward to the participation of a lot of people. And we'll look forward to seeing you when the festival's on later in the year. Don't miss to be part of SIFI 2020. All the best and see you at the festival. I invite you all to SIFI 2020. Vaishnavi, your mic is mute. Sorry. Now it's time for the result, and I will request our chief guest, RJ Gary, to please announce the result and share a few words with us. अब मेरे लिए ज्यादा टफ हो गया है बिकॉज 2 जनों में से एक विनर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. अदरवाइज ज्यादा होते पार्टिसिपेंट्स तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती. तो दोनों ने बहुत अच्छा बोला है. प्रेजेंटेशन वाज गुड. एक्चुअली क्या होता है, रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको. जब भी हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर अपने इनपुट्स देने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं. जैसे पहला टॉपिक था यूज ऑफ एनजीओज फॉर बिजनेस पर्पसेस, राइट. तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे दिमाग में एनजीओ का वर्ड स्ट्राइक करता है तो एनजीओ के आसपास जो चीजें घूम रही होती हैं, ये बेसिकली कंटेंट राइटिंग का एक फंडा बता रहा हूँ. बेसिकली जब भी हम लोग एनजीओ का नाम लेते हैं बहुत सारी चीजें दिमाग के आसपास घूमती हैं. एनजीओ को लेकर बहुत सारी चीजें याद में आती हैं. लोगों को इनसे जुड़ना अच्छा लगता है. ये दूसरे लोगों की हेल्प करती हैं एनजीओज, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हो जाए, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो जाए, चाहे वो एनी मीडियम. तो हम जब भी एनजीओ को डिफाइन करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें जब हमारे आसपास घूमती हैं तो उनमें से एक टॉपिक पे बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम लोगों को कोशिश करनी होती है कि बहुत सारे जो आसपास पॉइंट्स घूम रहे होते हैं उनको कोलैबोरेशन करना होता है. नो डाउट टाइम बहुत कम था. आई गेस 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें वो कवर अप करनी थी. तो जब भी आप किसी टॉपिक को चूज करते हैं तो जो आसपास चीजें घूम रही होती हैं, पॉइंटर बना के उसको फटाफट से जब हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो और ज्यादा अच्छे से निखार निकल के बाहर आता है. आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. ऐसे ही जब हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बिजनेस के आसपास बहुत सारी चीजें घूम आती हैं. बहुत सारे लोगों के बिजनेस होते हैं, लाइक किसी का हॉजरी का बिजनेस है, किसी का स्पोर्ट्स का बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं. तो जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो पॉइंट्स आसपास घूमते हैं उनको पॉइंटर वाइज बनाते हुए हम एक एक चीज के ऊपर अगर बात करते हैं तो वो थोड़ा सा निखार ज्यादा आता है. बल्कि एक ही चीज को हम लाइक एक ही पॉइंट आया तो एक ही पॉइंट को हम लोग आगे बोलते चले जाएंगे, सारी चीजें कवर नहीं होती हैं. तो दूसरा टॉपिक था द ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, राइट, यही था ना? Yes, sir. The trend of organics over non-organic product. हाँ. तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी जीनत की, जीनत ही नाम है. हाँ, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी. बीच में थोड़ा सा ड्रैग हुआ, फिर दोबारा फिर उसी पॉइंट पे आए जहां से इन्होंने शुरुआत करी थी. फिर दोबारा से जब इन्होंने कंक्लूड करना था थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि लाइक अब मैं क्या बोलूं वाइंड अप करने के लिए. बट ओवरऑल इट वाज गुड, दोनों का बहुत अच्छा था. तो अगर मैं विनर डिसाइड करूं, फिर वही बात पे आ गया मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये. तो अगर विनर डिसाइड करना हो तो यस, जीनत का थोड़ा सा अच्छा था, शी इज अ विनर. और एक और चीज ये कहना चाहूंगा कि मैं जान सकता हूँ आप लोग कौन सी स्ट्रीम से हैं और क्या करते हैं आप, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, जीनत और वैष्णवी? I am from third year, BA LLB, law student, third year. ओके. और वैष्णवी आप क्या करते हैं?
सर मैं अभी इंग्लिश ऑनर्स परसू कर रही हूँ, सेकेंड ईयर PGDAV कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, ठीक है। तो दोनों का बैकग्राउंड जो है वो मास कॉम से नहीं है नहीं ना? सर। हाँ, तभी जो मास कॉम के बैकग्राउंड वाले होते हैं वो एकदम से सारी चीजें आसपास घुमाते हैं, फिर उसके बाद एक पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ठीक है, इट्स गुड। एक प्लेटफॉर्म आपको मिला, आपने अपने पॉइंट्स रखे, तो ओवरऑल अच्छा था, दोनों का बहुत अच्छा था। नेक्स्ट टाइम जब भी आप दोनों जने कोई किसी टॉपिक के ऊपर बोलना चाहें, तो फटाफट से नोट डाउन करने के बाद ना, जो पॉइंटर्स दिमाग के आसपास घूमते हैं ना, उनको फटाफट से नोट डाउन करके जो जो चीजें दिमाग के आसपास घूमती हैं उसको पॉइंटर्स बना के इलैबोरेट करते चलो एक एक पॉइंट को। वो और अच्छे से आपको भी क्लियर हो जाएगा, जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो वो भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहे हैं। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए जितने पॉइंट सारे दिमाग में आते हैं अपना टेक दे दो। टेक मतलब आप क्या सोचते हो उसके बारे में, तो वो आप दे दोगे तो कंक्लूड हो जाएगा कि बेसिकली हम लोग कहाँ पे हैं। देखो मैं बताता हूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग विद एबीपी न्यूज चैनल, मेरे को एक बार किसी ने बोला गाय के ऊपर ऐसे लिखना है। तो मैं पंजाब से हूँ, तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था कि लोग कदर नहीं करते थे, अभी भी लोग जानवरों की केयर नहीं करते हैं। आई होप मैं ऑडिबल हूँ आप सबको। Yes, sir. हाँ, तो लोग कदर नहीं करते हैं जानवरों की, लोग जानवरों से प्यार नहीं करते हैं, मैं ऐसी चीजें बोल रहा था वहां पे। तो मेरे बॉस ने मेरे को बताया कि ये सबको पता है कि लोग जानवरों की कदर नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, टाइम नहीं है लोगों के पास, बट मेरे साथ वाला जो मेरा कलीग था उसने लिखा गाय की 2 आंखें होती हैं, 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, वो दूध देती है, दूध बड़ा उपयोगी होता है, ऐसी चीजें जो सब लोगों को पता है। ये नाक होता है गाय का नाक होता है, वो सड़क पे चलती है, थोड़ा सा अंदर दिमाग में चल रहा होगा ये क्या बता रहा है, ये सबको पता है, ये भी सबको पता है ना। बट एक्चुअल में रियलिटी वही थी, गाय का ऐसे लाइक गाय की 4 टांगे होती हैं, ठीक है, वो दूध देती है, यही उन्होंने बुलवाना था। मेरा पॉइंट समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अगर हम लोग ये बोलें कि लोग कदर नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट एक्चुअल में गाय की 4 टांगे होती हैं, यही तो बताना था। दिस इज एक्चुअली द फंडा ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग एंड ऑल। आप बैकग्राउंड जर्नलिज्म वाले नहीं हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, सिर से ऊपर भी निकल रही होंगी बातें, बट दिस इज द बेसिक फंडा कि जब आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हो, सबसे पहले जो ट्रुथ है या जो फैक्ट्स है उसके ऊपर बात करनी है, देन उसके बाद अपना टेक देना है। दिस इज द ऑल अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग ऑल। तो ये चीजें हैं। और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ दोनों में से। सर एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, आज के टाइम पे हम लोग ज्यादातर बायलिंगुअल हो जाते हैं। जब हम ऐसा ऑन द स्पॉट हमें कुछ बोलना होता है तो उसमें हम बायलिंगुअल ही रहते हैं। तो वही जैसे प्रॉब्लम जो मुझे भी अभी इसमें आई वो यही थी कि मुझे पता ही नहीं फर्टिलाइजर को मैं हिंदी में क्या कहूँ, मैन्योर को हिंदी में क्या कहूँ। तो सर ये क्या रियल लाइफ में जब प्रैक्टिकली हम काम करते हैं तब भी इफेक्ट करता है? यस, बिल्कुल सुधारा इफेक्ट करता है। सर सुधारने के लिए मैं बताता हूँ, मैं रेडियो पे काम करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे हिंदी के वर्ड्स होते हैं, पंजाबी के वर्ड्स होते हैं, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता होता हूँ जब शो से पहले, तो मेरे को खुद में समझ में नहीं आता कि यार इसको पंजाबी में एक्चुअल कहते क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो वाली लैंग्वेज यूज करते हैं जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी वर्ड इस्तेमाल किया यूज, मैं इस्तेमाल वर्ड भी बोल सकता था। यूज इज इक्वल टू इस्तेमाल, यूज इज इक्वल टू प्रयोग, है ना। प्रयोग वर्ड आजकल कोई यूज करता नहीं करता, मुझे नहीं लगता करता होगा कोई, है ना। इस्तेमाल कुछ हद तक लोग करते हैं, ठीक है। यूज वर्ड एक्चुअल में यूज होता है, तो हम लोग वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो हम लोगों की आम बोलचाल में रहते हैं कि यार ठीक है ये बोल देते हैं, लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट। अब एक मैसेज होता है, संदेश क्यों नहीं बोलते हैं, मैसेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैसेज आम बोलचाल वाला वर्ड हो गया ना। संदेश कौन कौन बोलेगा यार मैंने तेरे को संदेश भेजा, यार संदेश भेजा, कितना वो भारी वर्ड है ये। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नो डाउट इट्स ट्रू कि बायलिंगुअल की वजह से हम लोग इधर उधर खिसक गए हैं। उसका एक असर चैट का भी है, हम लोग प्लीज को PLZ लिख देते हैं जी, प्लीज, है ना। या और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं
पीपल को हम लोग आजकल पेप्स बोलते हैं, PEPS, पेप्स, है ना? तो नो डाउट कहीं ना कहीं पे इसका इफेक्ट नजर आता है, लेकिन इतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम लोग लाइक ब्रेकिंग न्यूज में चला रहे हैं। सपोज कोई इंग्लिश न्यूज चैनल है, उसने वर्ड चला दिया कि वी हैव 50 पेप्स, लोगों को समझ में नहीं आएगा यार कौन से 50 पेप्स बोल रही है ये बंदी, यू नो। तो अगर हम लोग वहां लिखेंगे वी हैव 50 पीपल, लोग समझ आएंगे कि इनके पास 50 लोग हैं। आम बोलचाल में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग जब बोलते हैं तो वो चले जाते हैं, मुंह से निकल जाते हैं, इट्स गुड, बट जब हम लोग लिखने बैठते हैं तो वी कांट राइट PLZ इज इक्वल टू प्लीज, वहां पे PLEASE ही लिखा जाएगा। लाइक वी आर वर्किंग विद कॉर्पोरेट सेक्टर, तो हमारे यहाँ पे PLZ नहीं लिखा जाता मेल पे। अगर किसी को मेल लिखनी है ना कि प्लीज गिव मी डायरी, मैं लिखूंगा PLZ, नहीं, PLEASE। तो जब हम लोग बोलते हैं तो आम बोलचाल में वर्ड्स इस्तेमाल हो जाएं, इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम जब लोग लिखते हैं तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी है। आजकल तो एक और नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जब हम लोग लिखते हैं, अगर आप न्यूज चैनल देखते हो, कई बार बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में लिखा जाता है, कई बार या न्यूज़पेपर में भी लिखा होता है। सपोज किसी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्कआउट कर रहे थे। अब वर्कआउट वर्ड कई लोग क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, न्यूज चैनल वाले भी, कि WORK-OUT, वर्कआउट, कई हिंदी में लिख देते हैं वर्कआउट। तो अगर वो इंग्लिश में लिखा है तो उसका मतलब यही है लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसीलिए जब हम लोग ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो राइटिंग में वो वाली चीजें नहीं आती हैं जो हम लोग आम बोलचाल में इस्तेमाल कर लेते हैं। बोलचाल में चलता है वर्कआउट इज इक्वल टू वर्कआउट, बट अगर हम लोग लिखने बैठेंगे तो वो हिंदी में ही लिखा जाएगा, ये है। बाकी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, बायलिंगुअल हो गए बहुत ज्यादा, उसका कारण मोबाइल फोन्स हैं, उसका कारण एडवांस जनरेशन है, यू नो, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट कट वर्ड्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से सब कुछ ये। बट जब आप प्रेजेंट करते हो, हाँ जी प्लीज प्लीज। नहीं सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो जब हम लोग, क्या मैं किस पे था, हाँ, तो आम बोलचाल में आप बोल सकते हो कि वर्कआउट या यूज, बट इफ यू आर वर्किंग विद हिंदी चैनल तो वहां पे इस्तेमाल ही लिखा जाएगा, यूज बहुत कम इस्तेमाल होता है। हाँ जी वैष्णवी। हाँ सर, सर जैसे आप रेडियो में काम करते हैं तो जब आप रेडियो में एज एन आरजे बात करते हैं, रेडियो जॉकी, वर्सेस आप कहीं, वैष्णवी आवाज ब्रेक कर गई आपकी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आई गेस वैष्णवी का नेटवर्क। Vaishnavi, your voice isn't clear. वैष्णवी आवाज आ रही है मेरी? नहीं। Vaishnavi, please unmute yourself. Yes, sorry, network connection चला गया था। So I was saying, सर आप एज एन आरजे जब बात करते हैं वर्सेस जब आप एज एन एंकर बात करते हैं, तो की तरह बात करने और एंकर की तरह बात करने में फर्क है, तो सर वो एक फर्क क्या आ जाता है? मतलब क्योंकि दोनों ही जगह आपको ऑडियंस को बांध के रखना है, तो वो फर्क क्या आ जाता है सर? रेडियो इज लाइक 1-to-1 मीडियम। आप घर पे बैठे हो, सपोज आप बेड पे बैठे हो, सर्दी बहुत है, आप कंबल में बैठे हो और आपने छोटा सा रेडियो सेट लिया हुआ है, आप सुन रहे हो आराम से, ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा बिल्कुल मेरे पास में बैठ के बोल रहा है ना। बीच में एक पर्दा है, हालांकि आप देख नहीं पाते आरजे को, हम भी आपको देख नहीं पाते कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, राइट। जब हम लोग रेडियो पे बात करते हैं तो एक 1-to-1 वाली फील आती है कि ये मैं सिर्फ इसीलिए इसके साथ हूं, और जो हमें सुन रहा है उसको लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही बात कर रहा है। गॉट माई पॉइंट? अब हम लोग 1-to-1 बात कर रहे हैं ना, तो इस पे पब्लिक नहीं सुन पा रही। मैं आपको बड़े पर्सनल वे से समझा रहा हूँ, नहीं वैष्णवी ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे होता है, मैं आपके लिए ना गाना प्ले करने वाला हूँ, सिर्फ आपके लिए है। आपको लगेगा हाँ यार ये सिर्फ मेरे लिए बोल रहा है और मेरे लिए ही गाना प्ले करेगा ये, ऐसे ही सबको लगता होगा
जितने घरों में रेडियो चल रहा होगा, जितने घरों में आरजे गैरी को लोग सुन रहे होंगे, सबको ये लग रहा होगा ये मेरे लिए बोल रहा है सिर्फ, है ना। अब अगर हम लोग स्टेज पे जाते हैं, स्टेज पे पता नहीं 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 100 हैं, 200 हैं, व्हाटएवर जितने भी लोग हैं, तो उनको ऐसा फील नहीं कराते हैं कि हम सिर्फ तेरे से बात कर रहे हैं। उनको ऐसा फील कराते हैं मैं सबके लिए आया हूँ, तो आप एक बार हूटिंग कर दो या कुछ भी, है ना। आप में से कौन कौन है जो इस क्लास में पढ़ता है, या कौन कौन है जिसने इस सिंगर को सुना हुआ है, या कौन कौन है जिसने ये नाम सुना हुआ है। वो पता लग जाता है ऑडियंस को, ये सबको सबके सामने और सबके लिए बकवास कर रहा है, करने दो, है ना। तो वो एक स्टेज शो है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 1-to-1 मीडियम नहीं होता है, रेडियो में 1-to-1 मीडियम होता है। ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं सिर्फ वैष्णवी के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, वैष्णवी के साथ ही बात कर रहा हूँ, और वैष्णवी को लगे आरजे गैरी सिर्फ मेरे लिए बैठा है, मेरे साथ ही बात कर रहा है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। हम लोग वहां पे चला चला के बोलते हैं, बिकॉज वो स्टेज शो है। रेडियो पे बड़े प्यार से बोलते हैं, आप सुन रहे हो 94.3 माय एफएम, वैष्णवी ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो वो वैष्णवी को लगेगा हाँ यार ये बंदा सिर्फ मेरे लिए गाना प्ले करता है, मैं तो इसका रोज शो सुनूंगी। गॉट माय पॉइंट। ये मेजर डिफरेंस होता है। स्टेज पे हम लोग जब बोलते हैं तो वहां पे हजूम होता है, वहां पे हमें नहीं लेना देना कौन किसके कानों में आवाज गई, किसके कानों में आवाज नहीं गई, हाँ बट सुनाई सबको दे रहा होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है 1-to-1 और इंटरेक्शन विद ऑल ओवर द जितने भी वहां पे लोग हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो लोग कैसे हैं। यहाँ पे तो ये पता है ना कि हाँ वैष्णवी ने रेडियो ट्यून किया है, 4 बजे आरजे गैरी आ गया, ये बस मेरे साथ ही बात करेगा। अब हर बंदे को ये लगता होगा कि उसके साथ ही बात हो रही है, बिकॉज रेडियो इज पर्सनल मीडियम, 1-to-1 ये चीज। Okay, thank you, और sir. कुछ एनीथिंग एल्स? यू वेलकम। You, sir. बस 3 questions. Thank you so much, sir, for your kind words. I would like to congratulate Zina Jahan from Chaudhary Charan Singh University, and special thank for all participants for taking part in this competition. Winner will get a cash prize. I hope your journey at Vritika was memorable, inspiring, and taught you many things. Now, I will request Head DME Media School, Professor Dr. Sushmita Bala, to give concluding remark. So ma'am is not there. We can straight away Okay, sir. do the end of this program. Oh. Before we formally conclude the event, I would like to share the DME social media handles. Connect with us at Facebook and Instagram at DME Noida and YouTube at DME TV. For any queries related to Vritika 2020, follow our Facebook and Instagram page as vritika.dme. Now I request Mr. Pramod, Assistant Professor, Head DME Media School, to deliver vote of thanks. Thank you very much, Vaishnavi. Thank you very much, RJ Gary. It was a pleasure having you with us. And हम हमेशा इस बात पे बहुत जोर डालते हैं कि इवेंट्स जो हैं, जो हम इवेंट्स कराते हैं कॉलेजेस में, दे हेल्प इन नर्चरिंग द स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाने में हमारी मदद करते हैं। तो इवेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। और जब इवेंट में आपके तरह कोई एक आरजे आके स्टूडेंट्स को इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये इवेंट का जो पर्पस है वो उस पर्पस को भी हम पीछे छोड़ के हम और ज़्यादा स्टूडेंट्स को दे पाते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट डिस्पाइट द फैक्ट कि देयर नेम वाज देयर इन द लिस्ट एंड दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली ट्राइंग। और ये सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते, उतना ज़्यादा जो पार्टिसिपेट जिन्होंने अभी किया, जो कनेक्ट कर पाए, वो और ज़्यादा दूसरों को देख के भी सीख सकते थे, और आपके थ्रू भी जो इनपुट्स मिलते उनके माध्यम से भी बाकी स्टूडेंट्स भी उसको सीख सकते थे। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी चाहिए। तो इस परिस्थिति में आपने जो बच्चों को बातें बताई और जो समय आपको मिला, जो इनपुट्स आपने शेयर किए, उससे हमने भी सीखा, और बाकी यहाँ पे इस रूम में, इस जूम मीटिंग में मौजूद सभी लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय निकाला। I would like to thank Zeenat and Vaishnavi, the one who participated from PGDAV College, कि आपने भी अपने सारे शेड्यूल के बीच में से आपने इसके लिए समय निकाला and you were prepared for it. Participation सबसे ज़रूरी है।
winning and losing is just part of the game. ठीक है, आज अगर आप यहाँ पे अगर आप नहीं जीत पाए, in the next probably some other event you would emerge victorious. So that's not a problem. But along with that, I would like to thank Vaishnavi, the anchor of our program. I would like to thank Shubhang Singh Thakur, who has been constantly in contact with me, coordinating each and every aspect of this particular event. And he has been putting in a lot of hard work. There are other students like Isna Amir, who's also part of this. Ishita Tadial is, recording the entire thing to create some social media presence for this particular event. So if I'm missing some name, please excuse me for that, because you all have been working so hard, and I would really like to thank you, and I wish you that you continue working with this spirit and organize events that are more massive than this. Thank you very much. Also, I would like to thank Amrish Saxena sir and Susmita Bala ma'am, our dean and head of the department respectively, that they provided this platform to all the students and teachers to come together and also allow this kind of an interaction with the industry people. So this is something that we all strive for, and this is from where the learning begins. Thank you very much. You're welcome. Thank you, sir. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures, and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students.